ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ? ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਸਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਘਸਮਾਣ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ। ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 25 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ 27 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ 14 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਗੋ ਨੇ 3 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਨੇ 1 ਜਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 1 ਜਿੱਤੀ। ਸੋ 46 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਮਤ 27 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ 51 ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। 46 ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 46 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ 46 + 5 51 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 27 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, 46 ਚੋਂ 27 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣਾ, ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ, ਉਸ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫੌਜਾਂ ਜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ
वापसी की कहानी। आ लो जी, आ चिट्ठी आई है जी। मनजिंदर सिंह सिरसा के साथी उसनूं चिट्ठी लिख रहे हैं। हुण ये कहण नूं तां मैंबर ने, ये पुरानी कमेटी के हवाले नाल गल हो रही है। मैं तां ही कहा कि नवीं कमेटी के मैंबर चुने गए, पर नवीं कमेटी चो जे प्रधान नहीं चुने गए। सो इसलिए पुरानी कमेटी के हवाले नाल मनजिंदर सिरसा ने दिता अस्तीफा, समझ लो वापस लै लिया, मुड़ के प्रधानगी संभाल ली। सो नवीं ये सारी खेड का खेड रचिया किवें, सारा अस्तीफा देने तो बाद वापसी वाली खेड किवें हुई। 31/12/2021 अज की तरीक है जनाब। अज की तरीक दे विच 3 मैंबर, जिन्हां च महेंद्रपाल सिंह चड्डा, जिन्हां च जगदीप सिंह कालों, जिन्हां जसवीर सिंह जस्सी, ये 3 मैंबर मनजिंदर सिंह सिरसा नूं चिट्ठी लिखते हैं। उस मनजिंदर सिंह सिरसा नूं जिहड़े शामिल हो चुके हैं भाजपा च, जिहड़े दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी तो अस्तीफा दे चुके हैं, तो इस बार वो मैंबर भी नहीं बने, इस बार वो पेपर भी पास नहीं कर सके, तो इस बार नॉमीनेट वाले मैंबरों की लिस्ट भी नहीं है उन्होंने नाम। वो मैं दस देंगा कि मैंबर कौन बन जा रहा। पर उस तो पहला आ चिट्ठी 3 मैंबरों ने जी चिट्ठी लिखी, वो पहली लाइन तो ही खासा कुछ साफ होंगे। सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो फिर कित्थे गई अस्तीफे वाली गल? ये तो बाकी गल बाद चो आई कि अस्तीफा उन्होंने अपना वापस ले लिया, उन्होंने कहा कि मैं अजे प्रधान बने रहूँगा। पर इधर चिट्ठी जी अज चिट्ठी लिखी गई 3 मैंबरों वालों, उन्होंने प्रधान ही लिखा गया, जो कि वो पहला अस्तीफा दे चुके हैं। कहेंगे अस्तीफा प्रवान नहीं, सो इसलिए वो प्रधान है ने। सो ठीक है जी, चलो आप चिट्ठी पढ़ीए। सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पत्र राही आप जी नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा हालातों बारे दसना चाहते हाँ। आप जी के प्रधानगी के अहुदे तो अस्तीफे देने तो बाद, सो इधर लिख भी रहे हैं विच कि तुसीं प्रधानगी तो अस्तीफा देता उस तो बाद, पर उपर लिखा प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो कहते आप जी के प्रधानगी के अहुदे तो अस्तीफे देने तो बाद पिछले 2 महीने तो गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के स्टाफ नूं तनख्वाह नहीं दी गई, ਅਤੇ दिल्ली कमेटी के स्टाफ नूं तनख्वाह, गुरपुरबां की तनख्वाह, बच्चों के वजीफे समय सिर मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। जिवें कि तुसीं जानते हो कि ओमिक्रॉन वायरस महामारी तेजी के नाल देश में फैल रहा है, ਅਤੇ दिल्ली में सब तो ज़्यादा केस आ रहे हैं। इस महामारी बच्चों को अपनी चपेट में लै रही है। मौजूदा हालात नूं वेखदे होए बाला साहब 125 बैड वाले हस्पताल नूं शुरू करना समय की लोड़ है। आप जी ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी की सेवा पिछले 3 साल ਅਤੇ जनरल ਸਕੱਤਰ वजों 6 साल बखूबी निभाई है। ਅਤੇ करोना काल में दिल्ली कमेटी ने जो समाज की सेवा की उसकी दुनिया भर में शलाघा हुई, ਅਤੇ नाल ही दिल्ली कमेटी के करके आप जी नूं देश विदेशों में संगतां वालों माण बख्शिया गया। इस तो इलावा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोआप्ट जिन्हें आप गल करें नॉमीनेट मैंबर की चोण 5 जनवरी 2022 नूं ਅਤੇ नवीं कमेटी का गठन 20 जनवरी 2022 तक होने की संभावना है। असी जानते हाँ तुसी अपने कामों में रुझे हुए हो, पर असी आप जी नूं बेनती करते हैं कि जब तक नवीं कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक तुसी दिल्ली कमेटी के प्रबंध नूं प्रधान वजों अपनी देख रेख चलाउण की किरपालता करनी जी। गुरु पंथ के दासरे महेंद्रपाल सिंह चड्डा मैंबर, जगदीप सिंह कालो मैंबर, जसवीर सिंह जस्सी मैंबर। सो आ चिट्ठी जिहड़ी उपर उन्होंने प्रधान लिखती आ, विच जिक्र करती है कि अस्तीफा दिता सी तुसीं, पर लोड़ आ तुहाडी वापस आओ। खास गल कि नवीं कमेटी जिहड़ी चुनी गई है उहदे जिहड़े मैंबर चुने जाने ने नामजद, वो 5 जनवरी 2022 नूं चुने जाने ने। नवीं कमेटी जिहड़े 46 मैंबर चुने गए हैं, जिन्हां 27 अकाली दल दे ने, सरना भरावां दे 14 ने, हैं दूसरी जागो दे 3 ने, पंथक लहर का 1 है, आज़ाद 1 है। तो उस दे नाल जिहड़े नॉमीनेट मैंबर 5 चुने जाने ने, उन्हां चों 2 दे नामां दा मसला रहिंदा सी, जिहदे विच एक सरसे दा नां खुद चल रहा सी, उस नूं लांभे कर दिता गया। उन्हां दी थां दे उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े प्रधान धामी साहब चुने गए हैं, उन्हां दा नाम ऐलान होना है। नाम फाइनल है, वो नाम ऐलानिया जा सकता है 5 जनवरी नूं। उहदे नाल एक नाम लाटरी राहीं निकलना, वो नाम भी लाटरी शायद कढ़ ली गई है, मेरा ख्याल उहदा नाम ऐलानिया जाना। सो 5 जनवरी नूं वो 5 नॉमीनेट मैंबरों के नाम सामने आ जाने ने। उस तो बाद टीम 51 मैंबरी तय है। उस तो बाद 20 जनवरी तक नवे प्रधान की चोण हो सकती है।
पर इस तो भी बड़ा खतरा सी कि 5 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ बैठक होनी है उस दे विच ही पहला अस्तीफा प्रवान होना ते सिरसा जी की पक्की छुट्टी होनी है। सो आ खेड सिरसा के साथी मैंबरों वालों रची गई। चिट्ठी के हवाले नाल उन्होंने कहा गया कि प्रधानगी संभालो। की ये प्रधानगी सिर्फ मनजिंदर सिंह सेवा पंथ की सेवा लई संभाल रहे हैं या फिर भाजपा नूं कब्जा दिवाउण लई संभाल रहे हैं? आ खेड है जी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते मन्निया जाए कि हुण भाजपा का कब्जा हो गया, चाहे वह 20 जनवरी तक है या उस तो बाद भी हो सकता है। इसका कारण क्यों? मौजूदा प्रधानगी का कार्यकाल पिछले प्रधान का कार्यकाल उस समय तक चलना है जदों नवा प्रधान जब तक नहीं चुनिया जाता। जेकर अस्तीफा प्रवान हो जाता तो भी गल सही सी, अस्तीफा प्रवान होने तो पहला ही वापसी का खेड रचा गया तो अस्तीफा वापस दवाया गया तो प्रधानगी संभालने लई कहा गया। इसका मतलब अज की तरीक च मनजिंदर सिंह सिरसा प्रधान ने। चलो ये तो है चिट्ठी, पर मैं तुहानूं जिहड़ी चीज़ दिखा रही हैं जी वो है वैबसाइट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वैबसाइट के उत्ते तुसीं जाके देखो, उत्थे ऑफिस बीरर मतलब जिहड़े अहुदेदार ने तुसीं उन्हां नूं जदों चैक करोगे तो तुहानूं उहदे विच साफ दिखेगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा नूं प्रधान दिखाया गया। उहदे विच सब तो उपर वार्ड नंबर 9 सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा प्रेजिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वार्ड पंजाबी बाग। सो ये पिछली बार वाली जित्ती हुई चोण के हवाले नाल वो अजे भी प्रधान ने। सो उस दे उत्ते साफ है सब तो उपर जो तुसीं वैबसाइट पर जाने हो तो ऑफिस ब्यूरो जाने हो तो वह दिखाया जाता कि मनजिंदर सिंह सिरसा प्रधान ने, थले दिखाया जाता बीबी रणजीत कौर सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने, इस तरह सरदार कुलवंत सिंह बाठ वाइस प्रेजिडेंट ने, इस तरह हरमीत सिंह कालका जनरल सैकटरी ने, सरदार हरविंदर सिंह केपी सो ज्वाइंट सैकटरी ने। लो जी वो पर साफ है कि वैबसाइट के उत्ते भी अजे तक मनजिंदर सिंह सिरसा ही प्रधान ने। सो इत्थों साफ है कि प्रधानगी के हवाले राही वैसे भी सिरसा MLA भी भाजपा दे ही रहे हैं जनाब। टिकट अकाली दल दो बिलों मिली, कोटे अकाली दल चों मिली, पर चोण निशान BJP के लड़े सी जो MLA बने सी। ये वक्री गल है कि दूसरी बार हार गए। पिछली बार जो MLA बने सी तो MLA भी BJP के चोण निशान से ही बने सी और जिहदे निशान से बने ने फिर उस पार्टी के नॉर्मा च आउणा पैंदा। सो इसलिए भाजपा ही तो जद ही हो गए सी, पर हुण पूरी तरह रस्मी तौर पर होए तो हुण ये चर्चा क्यों चली? प्रधानगी वापस लेना अस्तीफा ठीक है, उस समय तक कार्यभार चलाउणा जदों तक नवीं कमेटी नहीं बनती ठीक है, पर की भाजपा का कब्जा ये क्वेश्चन क्यों उठिया? ये सवाल चर्चा का विषय क्यों बनया? इस सवाल ने मुद्दा क्यों खड़ा किया? उसका कारण यह है जनाब, एक चर्चा दिल्ली च चल रही है, एक चर्चा पंजाब च चल रही है कि नरेंद्र मोदी की पंजाब फेरी तो पहला पंजाब दे विच अकाली दल के लीडर, कांग्रेस के लीडर, यही नहीं जनाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 20 मैंबरों की चर्चावां ने। वो चर्चा किन्नी को सच साबित होंदी है जां किस रूप च सामने आउंदी है आउण वाला समा दसेगा, पर पंजाब दीआं सफा दे विच चर्चा जोर शोर नाल चल रही है कि 20 श्रोमणी कमेटी मैंबरों तक भाजपा पहुँच कर रही है कि किसी तरह तुहानूं रला लीए। वो रलते हैं या नहीं रलते, उन्होंने कुछ रलते हैं या नहीं रलते, या कोई नहीं रलता, पर खबर है कि 20 श्रोमणी कमेटी मैंबरों तक भारतीय जनता पार्टी के लीडर बूहा खड़का रहे हैं, दरवाजा भन रहे हैं, चुगाट पट्टन तक जा रहे हैं कि इन्होंने 20 मैंबरों को असीं स्टेज पर चढ़ाउणा है, भाजपा शामिल करना है। सो की दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बाद भाजपा का निशाना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है? सवाल उठेगा ही उठेगा। सो एक पासे सरसा की वापसी, उन्होंने प्रधानगी दिवाउणा, चाहे वह 20 तरीक तक ही प्रधान रहन कि 20 तरीक तक ही कब्जा या उस तो अगला कदम जिसकी आप पहला गल कर रहे हैं कि एक पासे दिल्ली चर्चा क्यों है? कहा जा रहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा के राही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दिल्ली की श्रोमणी अकाली दल नूं ही भाजपा ही कर लिया जाए। कल्ले मैंबर क्यों, कल्ली कमेटी क्यों? दिल्ली दे विच जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल है उस नूं ही पूरी तरह खेरू खेरू कर दिता जाए, उस नूं सारे दे सारे नूं अपने पाले च लिआंदा जाए। ये कोशिशां दीआं चर्चावां ने, पर वो कोशिशां दीआं चर्चावां सच उस समय नज़र आउंदियां ने जदों पता लगदा कि सरसा चले गए, जदों पता लगदा कि अकाली दल के साबका होर MLA चले गए, होर लीडर जा रहे हैं। सो इस तरह लगातार शमूलीयत दी तस्वीरां जदों सामने आउंदियां ने तो उस तो सवाल उठने ही उठने ने कि लो जी अकाली दल के चेहरे नवे जान लगे ने, कांग्रेस के नवे चेहरे जान लगे ने, इधरों छड्ड उधरों छड्ड। सो इसलिए सवाल खड़ा होया कि मनजिंदर सिंह सिरसा की चिट्ठी जिथे दसदी है उत्थे ही आ भी वैबसाइट भी दसदी है कि भाई
ਸਰਸਾ ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ MLA ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੇਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਹੰਤ ਪਣਾਈ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਥ ਮੂਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੂਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਮੂਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ TV ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।